Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. तो मेरा इंट्रोडक्शन अगेन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शाजिया तारिक है और इस सेशन में मैं आप लोगों की चैट्स वगैरह देखूंगी और अपनी जो इस सेशन की होस्ट हैं मैम फरहाना, उनको मैं असिस्ट करूंगी थ्रू दिस सेशन। हमारे साथ ब्रदर आतिफ होंगे और सिस्टर आयशा होंगी, वो भी आप लोगों की चैट्स देखती रहेंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप चैट में डाल दीजिएगा। एंड जो इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह जो आपके लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम एंड में लेंगे। और इसके अलावा भी आप लोगों की तरफ से एक बहुत क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने मैम फरीदा से रिक्वेस्ट की है कि अगर वो क्वेश्चन ले सकती हैं तो वो मैं इंशाल्लाह एंड में पूछूंगी। आपका क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा जब मैं पूछूंगी इंशाल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम फरहाना से, अगर वो जो है ना यहाँ से स्टार्ट लें प्लीज। मैम फरहाना। Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan for attending the second session of conflict resolution. So last week we had a session. जो फर्स्ट सेशन था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, उसका टॉपिक ये था कि हम सेल्फ अवेयर हों कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, और कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशनशिप्स को आप कैसा इवैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप की ग्रेडिंग भी हमने बताई थी आपको। सो होपफुली आपने जो क्विज है वो किया है और रिफ्लेक्ट भी किया है अपने सारे रिलेशनशिप्स पे, उसे ग्रेड किया है, आइडेंटिफाई किया है कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, और you're ready for the next session today, which is ये होते क्यों हैं. So let me introduce Sister Farida for those who are coming in for the first time. So Sister Farida has tremendous experience in education. She's been a human rights activist as well. She has a lot of experience teaching kids, dealing with building wonderful relationship with self, with Allah subhanahu wa ta'ala, and with others, in the team. So, inshallah, Sister Farida, please go ahead. We are all waiting to listen to what are the causes for the conflict, and try to figure out as we listen कि हमारे जो conflicts हमने already identify किए हैं last class के बाद, let's figure out what are the causes. Jazakallah khair. Thank you, Ji. Thank you, Sister Farhana. So, Shazia, okay, good. So, Shazia, could you get me an idea of how many people just know English? आप पूछेंगे, please? Yes, अगर आप आप में से जो लोग कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश समझ आती है इजीली, जरा only English थम्स अप कर दें। only इंग्लिश। ओके। जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है, because then it becomes a problem when I start. सिर्फ इंग्लिश। Only English. You do not know Urdu. No, we don't have any. Everybody knows Urdu as well, right? Okay. All right, that's good. Thank you, Ji. My screen is visible? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. So we get into the next session. So पहले वाले session में जैसे आपने देखा कि we were looking at relationships, why are they important? We also looked at कि एक problem को कैसे define किया जाता है, right? Remember that? How do we define a problem between the difference between a perceived state and a desired state? We also looked at ways to जो हम इस्तेमाल करते हैं conflict को resolve करने के, and what is the best way, but we go off doing other things which short term में तो वो सही हो जाता है, short term में it brings a result, but long term it spoils the relationship. Then we looked at the levels of conflict, कि कैसे shoe में tension है, and it can go to a stage where you are completely trying to destroy each other, you don't even care about yourself, and you don't care about the other person. So, and finally, we went to assessing relationship strength.
So I'd prefer it if videos were on, please. It's not really polite for a lecturer to talk and everybody puts their videos off. You know, let's just stay in communication and engaged. मुझे भी पता चलता है आपको बात में समझ आ रही है या नहीं. It's a good idea to have videos on and engaged and connected. I'm sure you'll learn a lot more if we keep the connection through visual as well. You know, it's a visual world. Let's I request you to do that. I'll appreciate it if you do. Okay. So now we move on to our next section, which is the causes of conflict. We are going to look at the causes of. yeah, which one? All right. So the causes of conflict जो हम देखेंगे इस सेशन में वो 4 किस्म के हैं. Right, and what are we saying about conflict? We're going to look mostly at the first, second, and third, but the fourth one, first is values and interest differences, power differences, data differences, theme. And the last one is personality difference, which is the most important one. तो उसका separate session करेंगे. And it influences the other ones as well. But we are inshallah going to cover 3 of them today if everything goes to plan. So we all understood the definition of conflict, right? कि आपका कोई relationship है और उसमें कोई disagreement हुई है, and that you have a conflict. It can be a very light tension or it could be very aggravated. So conflicts हमेशा होंगे life में या नहीं होंगे? What do you think? Any answers? Yes, Always. yes, always Yes. conflict. जी, Always. Because why will they always be there? Because we are individuals. हमें अल्लाह ताला ने uniquely बनाया है. हमारे अपने thoughts हैं, अपने opinions हैं, हमारे अपने decisions हैं, अपने beliefs हैं. तो conflict तो difference तो होगा. वो तो it's a natural part of life, right? What is most important कि हम उस conflict के साथ deal कैसे करते हैं. That is what it's all about. Conflict is part of life. But the most important thing जो हमने सीखना है, जो इन सेशंस के थ्रू जो आपका लास्ट पार्ट है, इसमें टूल्स बताए जाएंगे कैसे करना है, that is how to deal with conflict. So what we are trying to do, problem का हमने definition दिया, perceived state and desired state में फर्क. So the first thing to understand the problem is कि आपको cause देखना है. Cause of conflict, कौन से category में आपका conflict fall कर रहा है, right? And we are asking the question, what is it? What is the conflict about? I told you there were 4 types of categories overall and 4. तो आपको decide करना है. How many people actually went back home and did a relationship thing in their home, applied it? कि हमारा desired state or you know what our current state and desired state में हमारे बच्चों के साथ क्या है, हमारे husband wife में क्या है, वे friend के साथ क्या है. Did anybody apply it or they just went and did nothing with the data? Can anybody? We did. We did, thank you. I did. How many people actually did it? Because that is all it's about, application. You know, if you apply it, you will progress. So please do that. So now I'm going to, just because I've covered this first section, I want to be sure you got it. I'm going to open the first quiz. All right? Can you do this quiz for me? Can you see it, Shazia? Is it showing? No, it's No. not. Okay, how about now? Yes. Yeah, Okay. it's coming. Okay, so the first question is, mark the state. There's only one question in there. Mark the statements that are true. Conflict will not and should not occur in our lives. Conflict is a natural part of living. Conflict occurs because people are unique and different. What matters is how we deal with conflict. So जो सही है उसको mark करें, जो सही नहीं है उसे नहीं mark करें. How many people do we have? 32 people, alhamdulillah, in the group. We would like to see, including me, I think, so 31 तो होने चाहिए.
right? Can we have 31 answers? Good. And that shows my students are awake. Just 4 more answers, 3 more answers Inshallah. needed. Inshallah. Okay. Yeah. I'm going to end the poll, right? Yeah. Share results. Right? Everybody got this concept. That's very good. Okay, so now we're going to move on to seeing the first type of conflict. And we call that the values and interests का difference. ठीक है? शाजिया, अगर मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा. Okay. So we are saying what are values? Values क्या होते क्या हैं? So जो आपके असल beliefs हैं, जो आप सोचते हैं ये बहुत इन्हीं पे मैं अपने decisions करूँगी, इन्हीं को मैं अपना behavior बनाऊँगी, वो आपका belief system बन जाता है. You know, that is what you think should be, the way life should be. So example, आप कह सकते हैं कि I think I should live, be very honest, be very loyal in my marriage, be very hardworking in whatever I do, be very professional. तो ये आपके values बन जाएंगे. Okay? And then when we say कि interest क्या होता है, so interest में है जिस चीज में आप you're really curious about it, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, जो चीज आपकी attention hold करती है, आप वहीं पे उसके बारे में सोचते हैं, उसमें involved होते हैं, उसको हम कहेंगे वो आपका interest है. So if you're interested कि job पे आपका promotion हो जाए, तो that is your interest. आपको gardening में interest हो सकता है, reading में हो सकता है, बहुत सारी चीजों में interest हो सकता है. So values क्या चीज है जो आपका गाइड करती हैं behavior और decisions को, और interest क्या है वो आपकी जो आप कर रहे हैं आपके actions को गाइड करता है. Does that make sense? I usually like an acknowledgement. You know, if I say something. Okay, thank you. All right. So let's look at interest. Let's look at examples of this. Should we look at example of values? So marriage में एक partner है जो उसका one partner says, maybe the wife says कि I'm really interested in the creative personal growth of my children. Spiritually मैं चाहती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त हों. They are critical thinkers, they are curious. She's got all her attention on that. And maybe the husband says, I really want my children to be well off. I don't want them to be poor. I want them to have status and I want them to get degrees. So there's a little bit of a different belief system there. Quite a big difference. एक material है और दूसरा more on the development of the child. तो उसकी वजह से रिसोर्सेज भी फर्क जगह पे जाने पड़ेंगे, उस पर भी गड़बड़ होएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगी, टाइम कहाँ पे खर्च हो, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए. They will all come into conflict because the two people have different values. इसी तरह दो मियाँ बीवी हो सकते हैं जिनमें they have a different view of bringing up children. One is very strict, they want full control over the child, their time, their effort. क्या कर रहे हैं, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया. You know, they're very strict in monitoring them, whereas another parent says, let them make their mistakes, let them do whatever they want, it's perfectly okay. So you can see कि ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट घर में आएगा. प्रोफेशनली में भी आप देखेंगे कुछ टीचर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट, they believe in punishment, smacking and shouting, and others they think it shouldn't be done, it should be done very respectfully, the child should be treated respectfully. So again the conflict will be there. And you can see that in a team also you can have different viewpoints, strict accountability or very loose control. So each of us is different, and we are not saying ye value galat hai ya ye value sahi hai. At this point, we are just saying we are different people, and we have a right to our opinion. And the main point is, how do you resolve this conflict, right? Yeah. Okay. So again, if you look at the interest side of it,
तो interest में क्या कहेंगे? एक what you like doing. What do you like to do? So you could have a marriage partnership in which one person likes gardening and looking after a house. Don't like going out much. The other one really wants to travel. Again, you get that little bit of conflict occurring. Where will the resources go? Where will the time go? And you can see that that would bring about interest ka difference. And similarly, you can look at interest difference in a school where you have school administration and subject teaching. One person can be really dedicated to having the curriculum right. How are we progressing on the curriculum, analysis of each student? And then the other one could be there, well, am I going to teach the kid? How am I going to make this practically applicable in a classroom? How can I give them knowledge that they can use and create something wonderful in life that would benefit mankind? So it's a very different that people are interested in. And as a result of that, conflict can be brought about. And similarly, in a work environment, you can look at practical work and say that I love practical work, and my colleague doesn't like practical work, but instead likes to analyze reports and play with figures and look at those things, and considers practical work, not so important. So when deadlines come and things are required, conflict could be created based on that. Does that make sense? Yeah. ये थोड़ा सा बस आप उर्दू पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Okay, thank you. All right, so let's किसी को समझ नहीं आई मुझसे सवाल पूछे, मैं क्विज दे रही हूँ, नहीं तो क्विज के बाद सवाल पूछे, ठीक है? Let's see. So ये वाला जो क्विज है ये आपका I'm launching this one. Can you see it? Yes. Okay. So mark the correct answers. Interests are that guide our behavior and decisions. Interest की definition दी थी और values की दी थी, right? Beliefs are what guides our behavior and decision. कौन सा चीज आपके behavior को and decisions को guide करता है? Interests या values? Right? Are you doing it? Yeah. कोई problem है इसको समझने में? Should we go back to the definitions? Is everybody understanding the questions? Yes? Responses are so slow, I think. पीछे जाओ, पीछे वाला screen दिखाऊं definition. Will that help? But I don't know, but 8 people have responded so far. 9, 10. Yeah, maybe they were. So what are values? Beliefs about what is important in life. और इंटरेस्ट क्या है जो आप कर रहे हैं, जो आप करते हैं, जहाँ पे टाइम और एफर्ट डालते हैं. बिलीफ आपके बिहेवियर को गाइड करता है, राइट? आपके बिहेवियर और आपके फैसले गाइड करता है. If you say that I believe that one should be very spiritual, तो आपका पूरा बिलीफ सिस्टम उस पे जाएगा, उस ग्रोथ पे आप अटेंशन डालेंगे, आपका टाइम भी उसी तरफ जाएगा, आप डिसीजंस भी उसी तरफ अल्लाह ताला की तरफ रजू हुए हैं. तो एवरीथिंग विल बी अबाउट आखिरत में मेरा क्या मुझे क्या मिलेगा, इसका अजर मुझे जवाब देना है खुदा को. तो वो आपका बिलीफ सिस्टम है वो, राइट? But if you are interested in learning the Arabic language, then you're just doing that. That would be an interest. Okay, let's learn the Arabic language. Does it make sense? 22 people आ गए हैं. Yeah. Any more? किसी को questions हो तो इसके बाद पूछें, कोई शक है या you're not clear on it, okay? Should I stop it now? 22 out of 36. Come on, we need more students. Any more students want to try? Yes, still coming, yeah.
Can you 24 share again? You can share again because अभी कुछ लोगों ने join किया. but they won't be able to answer this. Okay. Okay. So we're stopping at Okay. 25. What happened? Yes. 10 people. 10 people missing. Come on. Class में participation होना चाहिए, right? Everybody अस्सलामुअलैकुम। right. वालेकुम सलाम. अभी जो आपने क्या नाम है क्वेश्चन दिया था वो मैंने क्या नाम है समझ में नहीं आया, आप दोबारा जरा दिखा देंगे? ये दिख नहीं रहा आपको? मैं समझाती हूँ. दिख रहा है क्वेश्चन आपको? शाजिया, is it showing? जी यहाँ से दिखा? yeah. It is जी showing. दिख रहा है। ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट क्या होता है? वो आपके बिहेवियर को गाइड करता है और आपके डिसीजंस को गाइड करता है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? बिहेवियर को या पता नहीं। यहाँ पे इस तरफ डेफिनेशन स्क्रीन पे देखेंगे. जी वैल्यूज जो होते हैं वो होते हैं आपके बिलीफ्स. वो आपके बिहेवियर और आपके फैसलों जी को कंट्रोल करते हैं. जी ठीक है. ठीक जी है. अब जी और जी जो इंटरेस्ट है वो आप करते हैं, जिस पे टाइम लगाते हैं वो आपका इंटरेस्ट है. No, maybe you like going out with friends, so you're interested in social life. Yeah. बिहेवियर तो जहां पे आपका टाइम जाता है, जो एक्शंस आप करते हैं वो आपका इंटरेस्ट दिखाता है. और जो जी जिस तरह से आप डिसीजन फैसले लेते हैं और बिहेव करते हैं वो आपके वैल्यूज दिखाते हैं आपको. जी जी समझ गए? अब कर सकते हैं इसको. अब कर सकते हैं क्विज को. वो पहले वाला. हाँ, ये क्विज दिख रहा है. 9 लोगों ने पहला वाला हाँ बोला है कि इंटरेस्ट गाइड आवर बिहेवियर एंड डिसीजन. ये सही है आपके ख्याल में? बिलाल, जी सही है। जी सही है। क्यों सही है बताओ? पहला वाला क्यों सही है? क्योंकि इंटरेस्ट हम को आपको आपकी एक्शन को दिखाता है. इंटरेस्ट वैल्यूज तो आपके डिसीशंस, आपके फैसले और आपके किरदार को दिखाता है क्या है. समझ गए? बिहेवियर दिखाता है हमारा हाँ, किरदार को। वैल्यूज, आपके वैल्यूज. अगर आप कहते हैं मुझे ऑनेस्ट होना है तो आपका बिहेवियर हो गया ना. आपसे कोई पूछता है जी आपने ये चीज मेरी उठाई है, आपने उठाई है, आप बोलते हैं हाँ. तो आपका जी बिहेवियर और फैसला आपके वैल्यूज पे डिपेंड करता है. जी समझ वैल्यू गए? पे। हाँ. सो पहला वाला सही होगा, गलत होगा? पहला वाला सही होगा। हम्म. हमारा फैसला, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो काम है वो हमारी वैल्यू को सेट करता है ऐसे। हमारे जो वैल्यूज है ना, बिलीफ्स जो हैं, जो जी हमारे वैल्यूज हैं और आप जो सोचते हैं कि ये सही है या ये गलत है, वो आपके वैल्यूज हैं. हाँ. वो जी आपको आपका किरदार बना रहे हैं. वो आपका किरदार बना रहे हैं कि नहीं? जी जिसको बना आप रहे हैं। सही और गलत. तो फिर वैल्यूज और किरदार साथ साथ जा रहे हैं, आपके फैसले भी साथ साथ जा रहे हैं उसके. ठीक है. ये बात जी समझ जी गए? और इंटरेस्ट जी जो है, जिसका आपको शौक है, किन चीजों का शौक है, तो जी पहला वाला जो है इंटरेस्ट गाइड, दैट गाइड आवर बिहेवियर एंड डिसीजंस, वो तो नहीं करता है. इंटरेस्ट तो गाइड करता है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट लेंगे, किस चीज का आपको शौक है, आप यहाँ टाइम कहाँ निकालेंगे, गुजारा किसके साथ, क्या चीजें करेंगे अपने टाइम के साथ. वो इंटरेस्ट हो जाता है. आपका इंटरेस्ट क्या है? आप क्या पढ़ रहे हैं आजकल फिलहाल? तो क्या पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी में? अभी क्या नाम है क्या कर? मैट्रिक के बाद से अभी हाँ. कुछ पढ़ा नहीं है। वैसे ही हाँ. मैं किताब वगैरह पढ़ रहा हूँ। हम्म. बाकी अरबिक का कोर्स स्टार्ट किया है अभी। हाँ, तो आपको इंटरेस्ट किस में है? अरबिक में है. जी कि आपका जी इंटरेस्ट है. और क्यों आप कर रहे हैं अरबिक? क्योंकि कुरान हदीसें वगैरह पढ़ने में आसान नहीं हो सके, खुद हाँ. से पढ़ सकें। हाँ, तो आपको कुरान की नॉलेज है थोड़ी बहुत, वहां से आपके जी बिलीफ है। सिस्टम आ रहे हैं. आपको पता है कि एज अ जी मुस्लिम आपको कुरान की नॉलेज होनी चाहिए. तो वो आपका वैल्यू है, राइट? वो आपका जी बिलीफ है. लेकिन जहां जी पे फैसला आप है। टाइम गुजार रहे हैं वो इंटरेस्ट है.
जी जहाँ टाइम गुजारा वो इंटरेस्ट है, और जो मैं जहाँ सीखने के लिए मेरा जो शौक है वो बिलीव है। जो भी आपका किरदार बनाता है, जिसको आप कहते हैं सही है गलत है, राइट, वो आपका वैल्यू बन जाता है, वैल्यूज हो जाते हैं आपके। अगर आप कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में गरीब और अमीर में बहुत फर्क होना चाहिए, वो आपका बिलीफ सिस्टम है। जी ठीक है। कोई कहेंगे कि सबका हक होना चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए, क्यों इतनी गुर्बत है, क्यों कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते खाना सही, और कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हैं, फजूल खर्चियां कर रहे हैं। तो आपका बिलीफ जी सिस्टम है कि सबको हक है कि सबको बेसिक नीड्स हो, वो आपका वैल्यू हो जाएगा। वो इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो आपका वैल्यू सिस्टम है। समझ जी गए? ठीक है। जी समझ गया। ओके, गुड, ऑलराइट। सो वी हैव लेट्स सी के एंड कर रही हूँ पोल, इसमें क्या क्या निकला है हमारे शेयर रिजल्ट्स। सो नंबर 1 पे थोड़ा आउट आया है 11, राइट राइट। अभी समझ आ रही है? बिलाल के पहला वाला आउट है, इंटरेस्ट का बिहेवियर और डिसीजन से नहीं है, मैम दोबारा भेजिए, मैंने वॉइस मैसेज ऑफ कर दिया था। हाँ ओके दोबारा भेजिए, ओके, दैट्स ओके, बात है, आप समझ गए अभी। और आप एक बार उसको ना उर्दू में रिपीट कर दिएगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती सही से। Okay, I understand. Okay, so ठीक है। any questions? Any questions that you have? कोई और बताए, फिर एक दफा और भी बता दूंगी। मुझे Any भी आपने टिक uh, वाला भेजा था, हाँ नहीं बोर्ड की। बेटा, आप तो रुके एक मिनट, मैं पूछूं किसी और को questions हैं? जी Then we ठीक can है। go over it. Any other questions? Everybody's clear on it? Yeah. Yeah, good. Yes. So can somebody give me an example of a value? Urdu में, Urdu में. So Bilal can get an example. जी जी उर्दू में आप बता दें। ऑनेस्टी हमारी वैल्यू है, सच बोलना। हम्म। और अगर हम सच नहीं बोलते, और मुझे एक क्वेश्चन करना था, अगर मैं यहाँ कर सकूँ आपसे। करें करें। हम इंटरेस्ट और वैल्यूज की बात करें, अगर मेरी वैल्यू है कि मैं लाइक सोशल वेलफेयर में काम मुझे करना चाहिए, ये मेरी वैल्यू हो सकती है? Your value would be that you want people to have rights. You want them to have, उनके पास खाना पीने का होना चाहिए, जो पढ़ नहीं सकता है उसे पढ़ना, ये आपका वैल्यू है, आपका इंटरेस्ट है टू डू सोशल वर्क टू गेट दैट। अच्छा, जो लोग टाइम अपना वेस्ट करते हैं, उनकी लाइफ में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है? वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं अपनी वैल्यू की जगह पर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको इंटरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उनको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं कर रहे। तो वेस्टिंग टाइम जो है वो इस तरह से रिलेट होता है इंटरेस्ट और वैल्यू के to साथ। see what their values are. Maybe they don't think कि वो वेस्ट कर रहे हैं टाइम, आप सोच रही हैं वो वेस्ट कर रहे हैं टाइम। नहीं, कुछ लोग जो है ना वो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, वो हाँ, कहते हैं अब मैं थोड़ी देर तक शुरू करता हूँ, थोड़ी देर तक करता हूँ, अभी ये कर लूँ फिर मैं करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है। दे नो व्हाट दे आर सपोज टू डू, लेकिन yes, वो उसको डिले करते रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारी वैल्यू नहीं, उनको अंदर अंदर ये फील भी हो रहा होता है कि हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं। right, और right, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं ना, जब हाँ, एग्जाम्स के लिए पढ़ना होता है तो वो अपने किसी और काम के ऊपर बिजी हो जाते हैं। सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आता है, वैल्यूज उनको, आपका कितना जमीर आपको बता रहा होता है कि जो तुम कर रहे हो या गलत कर रहे हो। I think Zeba, it's a good question, but it doesn't quite fit on this one. We'll go on to the personality one, जो आप कह रहे हैं ना, procrastinate, delays and everything. That will be covered there, and Sure. इससे link हो जाएगा, इसकी तरफ link आएगा, but I think the crux is on the personality. तो वहां से Sure. शुरू करेंगे तो उनके फिर values भी फर्क होते हैं, interest भी फर्क होते हैं, right? सही, थैंक यू। Okay, my pleasure. All right. So we move on to, ये हमने कर लिया, right? सॉरी टीचर फ्रीजा, अब मैं उर्दू में एक एग्जांपल देना चाह रही थी, पता नहीं ये इसमें फिट होती है कि नहीं। जैसे फर्ज करें कि अब ये हमारी वैल्यू
सिस्टम है जहाँ पर वैल्यूज है ये हमारी, कि जो हमारी खवातीन है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप लॉयल होते हो, वफादार होते हो। तो लाइक हम एज अ मुस्लिम वुमेन हम लॉयल होते हैं टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर हस्बैंड, एंड दीज आर आवर वैल्यूज। ये ठीक है, ये मतलब ये हमारी वैल्यूज की कैटेगरी में फॉल करता है ना, कि मतलब हम एब्सोल्युटली यू आर राइट। थैंक यू। बड़ों का एहतराम करना, माँ बाप का, ये भी हमारी वैल्यू होगी ना। हाँ, that is your value. You think that elders should be respected. Yes. हाँ, सही है. Okay, we move on to the next one. Right? Next वाले पे जाएं, Yeah. causes of conflict. ये वाला, I think we got it, right? Moving on to the second one, कि conflict कहाँ पे आता है? When there's a power difference. Power से क्या मुराद है? जहाँ पे आपकी अथॉरिटी कम या ज्यादा हो, आपका कंट्रोल ज्यादा हो, किसी का और का कम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस जो है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, किसको कितना काम देना है, कैसा काम देना है। घर में भी अथॉरिटीज डिफरेंट होती हैं। मे बी हम अ फादर डिसाइड्स व्हाट विल हैपन एट द वीकेंड, कहाँ जाएंगे, किधर घूमेंगे, एंड देन a mother may decide कि इतना मंथली बजट है, कहाँ पे खर्च होगा, खाने पे कितना होगा, कपड़े पे कितना होगा, बाहर घूमने पे कितना होगा। सो दे आर डिफरेंट थिंग्स की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, एंड नॉट नेसेसरली कि ऑफिशियली ही एग्जिस्ट करे। डज दैट मेक सेंस? कि ऐसे भी आपस में भी, फ्रेंड्स में भी अथॉरिटी can exist over there, and there can be a difference in authority amongst friends as well. So sometimes it happens that कोई कमेंट कर दिया जाता है और आप सोचते हैं कि इसके, ये तो ऑर्डिनरी सी बात थी और इतनी भड़क गई। एंड व्हाट वाज सेड इज नॉट दैट कॉज द अपसेट। जो बोला गया उससे नहीं हुआ, लेकिन जो अंदरूनी ख्यालात थे कि मेरा पावर कितना, इसका पावर कितना, इसका कितनी इसको कितना बड़ा समझा जाता है, इंपॉर्टेंट समझा जाता है, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। डज दैट मेक सेंस? इट्स नॉट ऑलवेज कि ऊपर वाली वॉइस बातचीत में प्रॉब्लम है। ये है कि अंडरलाइन जो बंदा सोच रहा है कि मेरी पावर कम है, उसकी पावर ज्यादा है, या मैं बड़ा पावर वाला हूँ, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। All right, so we're going to look at some examples जो हमारी लाइफ में आते हैं, जहाँ पे पावर का फर्क आ जाता है, and we sort of don't realize it कि खामखा की conflict create हुआ है, and we don't even realize कि कुछ करना चाहिए इसके बारे में। हम उसको accept कर लेते हैं कि यही बात है। So if you look in the family, sometimes in our families, eldest son को ज़्यादा पावर दिया जाता है कंपेयर टू द यंगर ब्रदर्स, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होएगा। व्हाट डू यू थिंक? बाकी बेटों में होएगा कॉन्फ्लिक्ट? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। राइट, ओके। सो इट्स अ पावर कॉन्फ्लिक्ट। गर्ल्स एंड बॉयज में भी होता है। समटाइम्स इन आवर फैमिलीज, स्पेशली इन आवर मुस्लिम फैमिलीज, द गर्ल्स गेट वेरी लिटिल पावर and the boys get exceedingly lots of power and lots of freedom. And, girls get to have to serve the boys because they were girls. Boys don't clean up the room. The girls have to clean their rooms. So वो power difference आ रहा है दोनों में, और उसकी वजह से conflict पैदा होएगा. So you also get the power difference between wives and mother-in-law, wife and husband. इसी तरह प्रोफेशनल लेवल पे भी वन टीचर वर्सेस अनदर, वो कहे इसको क्यों ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, इसको क्यों प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला। एंड इन एम्प्लॉइज, वन टीम मेंबर अनदर टीम मेंबर। सो ये डायनामिक्स जो हैं, पावर इम्बैलेंसेस जब क्रिएट होते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पे बातचीत से नहीं पता चल रहा कि इस बातचीत में क्या खराबी है, लेकिन इनसाइड दैट पर्सन फील्स के मुझे थ्रेटन्ड हूं मैं, मेरी
रिस्पेक्ट कम हो रही है, मुझे राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसको क्यों मिल रहा है ये? तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट कि इस किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो दोनों तरफ इम्पैक्ट करता है। जिसको ज्यादा पावर दी जा रही है वो भी सफर करता है, बिकॉज इट्स बेसिकली अ डिस्क्रिमिनेशन, एंड जिसको कम पावर दी जा रही है वो सोचता है मुझ में क्या कमी है, मुझे भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, मैं सेकंड आया पैदाइश में, तो व्हाई शुड आई बी लेस given less things or given less rights? So it's power is part of life. पावर सब किस चीजों में माँ को पावर है, कुछ चीजों में अब्बू को पावर है, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ एंड इन एन ऑफिस एज वेल। लेकिन जब उस पावर को मिसयूज किया जाता है और किसी का बेसिक राइट आप छीन रहे हैं, you're not being fair to them, you're judging them, you're putting extra load on them, you're demanding more from them. When you get unfair in that approach, तो वहां पे आप क्रिएट कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होएगा, इवन दो especially children, they won't voice it, but they will feel it, and it will keep growing, and they will take it out somewhere or someplace. Does it make sense? Yes. Yes. Should we do a quiz then to see कितनी समझ में आई? Everyone's excited about quiz. Okay. Always ready for a quiz. All right, let's see. So we're doing the power one, right? Yeah. Mm. Yeah, it's Okay. showing. Yeah. It's showing good. Alhamdulillah. Yeah. All right, so it says mark the correct statements. Power conflict only occurs between people who are assigned authority officially. बिलाल, इसका मतलब है कि जो ऑफिशियली लोगों को पावर दी जाती है उन्हीं में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बाकियों में नहीं होता। Power conflict is often hidden beneath the surface of many interactions. यानी बातचीत तो हो रही है, उस बातचीत में कुछ भी नहीं है कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड में, उसके अंदर जो दिल में बात है ना, वो उससे उभर के बाहर निकल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, राइट? पावर कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस स्पेशली व्हेन बेसिक राइट्स आर डिनाइड, यानी आप उसके हक छीन रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को हक दिया है, of existing, of having ideas, of expressing themselves, of educating themselves. And once you start taking away those rights from that person, तो power conflict पैदा होएगा, right? Power conflict also happens when respect is not given. जैसा भी बंदा है, कैसा भी बंदा है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, we should respect them. It doesn't matter whether they are rich or poor, they look different, whatever it is, they are still Allah Ta'ala ne create kiya hai, and everyone is special because Allah Ta'ala has created them. So respect dena hamara ye farz banta hai, and in that sense we are saying it will create a power conflict agar aap usko gandi cheez ki tarah baat karenge ya uski baat nahi sunenge, anybody, right? Does it make sense? कितने हो गए शाजिया? अभी डन? 24. 38 people, 25. No, Come on. 25. हाँ, come on, everyone can do. Need 10 more. It's just click, click. Yes. अबे यार मैम Somebody's trying to say something. I think Bilal wants to say something. मैं बोल रहा हूँ वो अभी आपने वो भेजा था, कॉल आ गई थी एकदम, क्या नाम है, तो आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी मैं दोबारा काट के दोबारा वापसी आया हूँ। अच्छा, तो क्या सो बिलाल, तो यहाँ मुझे पूछने के पावर कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब आप पहले वाले में है कि खाली ऑफिस में ही होता है या बाहर भी होता है पावर कॉन्फ्लिक्ट? घरों में भी होता है, फ्रेंड्स में भी होता है, या नहीं होता है? खाली ऑफिस में होता है। खाली ऑफिस में होता है? आपके घर भाई में हैं सबको वही पावर कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी नहीं है दोस्तों में कि ये वो बड़ा है, उसको ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं? नहीं, एक पावर जो हमारा कंपनी में होगा वो घर में तो नहीं चल पाएगा।
नहीं, उस पावर की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि आपको हक है चीजों करने का, उसको बोल रहे हैं पावर। यू नो कि आपके कंट्रोल में है कोई चीज, जैसे अबू के कंट्रोल में है कि पैसा कहाँ खर्च होगा, तो उनका कंट्रोल है उसके ऊपर, राइट। जी है। अम्मी का जी कंट्रोल है कि आज क्या पकेगा घर में, तो उनका कंट्रोल है, जी पावर तो है ना उनके पास भी। जी तो फिर घर में भी पावर होता है, बाहर भी पावर होता है, तो पहला क्वेश्चन तो फिर गलत हो गया ना। उसमें तो कोई कंट्रोल उसमें नहीं है कि खाली ऑफिस में ही होगा, राइट। जी, वो तो दूसरे पावर की बात कर रहा था मैं। हाँ, समझ गई आपकी बात। तो जहाँ पे बातचीत हो रही होती है, उसके बीच में अगर किसी के दिल में खराबी है, वो सोच रहा है मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो कम ही समझता, मुझे समझा कम ही जाता है घर में, तो पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। उससे कोई भी बात कर लें आप, वो अगर ये सोच रहा है कि अबू हमेशा मुझे कम ही समझते हैं और मेरे भाई जी को ज्यादा समझते हैं, तो वो अबू कुछ भी बोलेंगे तो उसका मूड खराब होएगा। जी तो ये इस पे सही आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये सही है। अगर किसी को इज्जत नहीं दी जाएगी, उसको राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो वहां पे भी पावर कॉन्फ्लिक्ट होएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं भी तो बंदा हूँ, मुझे मेरी इज्जत जी क्यों नहीं दी जा रही, मुझे क्यों कमतर समझा जा रहा है, राइट। जी हम्म आए, चलो ओके, सवाल। are we done, Sister Shazia? We got 32. Yes, 32, yeah, Okay, not bad. Yeah. so it's good. समझ आ गई आपको, right? You did well, alhamdulillah. ओके, सो कौन Alhamdulillah. बताएगा दो किस्म के हमने क्या स्टडी किए हैं, दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट। पहला वाला क्या था, हु रिमेम्बर्स इट? फर्स्ट स्लाइड जो थी, किसी को याद है? values and interest. दैट्स राइट, Yeah. वैल्यूज एंड इंटरेस्ट वाज द डिफरेंस इन दोस विल गिव यू कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरा हमने स्टडी किया पावर का डिफरेंस विल आल्सो गिव यू कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, Cause of conflict. राइट। दो हम कर चुके हैं, नाउ वी गो ऑन टू द थर्ड वन, Yeah. Yes. which is the data का डिफरेंस। डेटा क्या होता है, एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन वुड बी डेटा। सो इसमें गड़बड़ हो जाती है डेटा आप तक पहुंचने में, एंड इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज। सो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, आपका इंटेंशन ही नहीं था कि ये था और दूसरे ने दूसरा समझ लिया, राइट। सो इन डेटा को क्या करना है, हमने हमेशा चेक करना है कि सही है या नहीं है, before we let that erupt into a big conflict, right? So let's look at how this can happen. So you can say कि अगर confusion कैसे पैदा होगा, तो you can see कि अगर आपने कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि आपको 4 बजे आना है इस मीटिंग पे, right? And you thought it was 5 बजे, right? So you either misheard the message, या आपने गलत समझा, उसकी वजह से आप कहेंगे मैं तो आया और ये थी नहीं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, बट इट्स जस्ट अ केस ऑफ डेटा डिफरेंस, ऑलराइट। द अदर वन इज द मिसिंग डेटा। वो कब होएगा कि मैं आई कॉल अप आई कॉल अप माय सन एंड ही डजंट पिक अप माय कॉल, or he's not I sent a message and he doesn't answer my message. And I'm waiting and I'm waiting and I'm waiting. He doesn't answer my message. I send another message. He still doesn't do that. मैं सोचती हूँ ये क्या हो गया इसको? Why doesn't he answer it? And I get upset and I have a conflict with him. But when I find out the data, उसका मोबाइल फोन गुम हो गया था. So he never saw my messages. Right? So you have to determine कि misheard था मैसेज या मिसिंग डेटा था जिसकी वजह से ये आप पे फर्ज बनता है बिफोर यू डिसाइड इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, कि डेटा तो मेरे पास सही आ जाए या नहीं, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि बिल्कुल ही गलत डेटा आपके पास आ गया है। सपोजिंग एक फैमिली में यू हैव अ डॉटर
और उसके ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। अम्मी ने देख लिया कि ये कैसी बातें लिखी हुई हैं तुम्हारे बारे में, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, राइट? एंड द पॉइंट इज दैट इट वाज रॉन्ग डेटा एंड अ मदर अज्यूम्ड इट टू बी राइट, जब वो सही था ही नहीं। सो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप अज्यूम कर रहे हैं और वो डेटा गलत है, राइट? ये 3 चीजें मैंने बोली। एक तो आपने मिस हेयर किया, एक मिसिंग डेटा और एक रॉन्ग डेटा। ये 3 चीजें समझ आ गई? यस, डिड यू गेट इट? Yeah. Okay, good. So now I'm going to go to the stirring the pot one, which is very important कि आप understand करें, because it exists in so many places in our life, लेकिन हम उसका सामना नहीं कर रहे। Stirring the pot में एक बंदा पीछे से 2 बंदों को उकसा रहा है। So supposing you have a husband and wife, and a sister, my sister or somebody's sister, goes and tells bad things about the husband to her sister. Say आपके मियाँ ने ये, आपके मियाँ ऐसे, उन्होंने ये भी बोला आपके बारे में, वो भी बोला. She goes and tells that to the wife. Then she goes and tells the husband कि my sister said this and this and this about you. Isn't that horrible and isn't that sad? Right? और दोनों बंदों में क्या होएगा? कुछ होएगा कॉन्फ्लिक्ट? Yeah. आएगा? Yes. But they have not created that conflict. They have not played a part in creating that conflict. पीछे से कोई उकसा रहा है वो पूरी, और उसको आग लगाता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद. And this thing happens a lot in society. It's not only limited to a husband and wife or mother-in-law and daughter-in-law. It goes across countries as well. A lot of countries are at war because some country behind them keeps on talking badly about the other one to the other one. और वो conflict generate किया जाता है because that country finds it beneficial कि ये दो लड़ते ही रहेंगे तो I will get forward in life. Does it make sense? Yes. Yeah. So it applies in offices, it applies in homes, it applies with friends. Always verify कि जो आपके साथ conflict हो रहा है इस वक्त, उसका actualness क्या है? आप कैसे इसको verify करेंगे? शायद आपके और मेरे में supposing conflict आता है, आपको कोई कहता है कि फ्रीडा ने आपके बारे में ये बोला, और मुझे आके बोल रहे हैं कि शाजिया ने आपके बारे में ये, तो अब हम दोनों का क्या फर्ज बनता है? आप कहेंगे तुमने मेरे ये बारे में क्यों बोला ये चीज? सो आई शुड से कि आपको किसने बताया कि मैंने ये बोला? एंड आई स्टे calm and you ask me the same thing, who said what about me? When did they say it? And then you keep on finding the true data before getting upset with each other. Does it make sense? Yes. Yeah. Okay. All right. So इसमें we Yeah. dealt with 4 kinds of data that we have to check before we decide that there is a conflict between us. एक तो आप check करेंगे कि मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, right? Then you will check कि कोई data तो missing नहीं है, right? Then आप check करेंगे गलत data तो मुझे नहीं दे दिया, और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कोई इसको भड़का तो नहीं हुआ पीछे से. ओके, सो डेटा कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करने के लिए ये चेक्स आपने करने हैं, कोई भी डेटा आपकी तरफ आए. इज इट ऑलराइट? Yes. यस. ओके, सो शुड वी डू अ क्विज ऑन इट? Yes. Yeah. ओके. I get the same problem, why is it that the last quiz always gives me this? Yeah. Stop. It won't let me launch.
नहीं लॉन्च करने दे रहा. Okay, I'm going to ask you verbally like last time. Okay? दोबारा ट्राई करें, मैंने इधर से एक बार यहाँ पे फिर से ट्राई करो मिसेस. जी प्लीज. Yeah. एक बार विजिबल हुआ था. हाँ वो कोई और क्विज हो रहा है. It's not happening on this quiz. Okay. Let me see. Oh, let me see. No, it doesn't let me launch. Anyway, I'm going to ask you the question. Don't worry about it. I'm going to ask you the question. Okay. आप बताएंगे ये कौन सा वाला डेटा है. ठीक है. So, मैंने हैंड रेस बोला. करेंगे, हाँ, you can हैंड रेस करेंगे. और 1 2 3 4 बनाए इसको. एक तो Thumbs है up या misheard. एक है misheard. एक number 1 is misheard. Number 2 is missing. Number 3 is wrong data. Number 4 is stirring the pot. ठीक है. Note यस, करना स्क्रीन है. पे भी है जी. हाँ. So number 1 is misheard आपने किया या misinterpret कर लिया. ठीक है. वो number 1 है. Number 2 is missing. Number 3 is wrong. And number 4 is stirring the pot. ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे. पहला question. I said come at 4 p.m. and my friend understood कि tomorrow is a meeting. I should come at 5 p.m. क्या है ये? कौन सा है? One है missing, misheard, missing, wrong, you're stirring the pot. Misheard. Wrong data. Number 1 है. Number 1 है. Number 1. That's correct. It is number 1. I misheard it. I misheard the data. दूसरा, I was told by my sister that my mother was complaining about me that I was not good to my brothers. क्या बोला मुझे? मेरी बहन ने बोला कि मेरी माँ कह रही थी कि मैं अपने भाइयों के साथ सही बिहेव नहीं करती हूँ. Fourth one, stirring the pot. मैंने अपनी कहानी नहीं खत्म किया. पहले एक्सपर्ट हमने सिचुएशन क्रिएट कर ली already. So I'm upset with my mother when I found out. My mother was upset with me. She said कि मेरी बहन ने बोला है that my mother was uncaring and rude. Mother said I was uncaring and rude. You're right. It's stirring the pot. उधर से बहन उधर बोल रही है माँ को और उधर बोल रही है बहन को. ठीक है. So everybody sees it, stirring the pot. Yes, stirring the pot. My friend would not respond to my messages. मैंने assume किया she wants nothing to do with me. Missing. That's right. Missing data. नहीं, misinterpretation नहीं है ये. Repeat. डेटा ही नहीं है ना कि जवाब ही नहीं आ रहा. Respond ही नहीं कर रही. So you got missing data. You don't know why. Right? ठीक हो गया. My colleague told me that I had been posted to another department. I was upset with my boss that he did not promote me but moved me to the other department. कौन सा है? Please read it again. Incorrect. My colleague. I think missing. My colleague told me I had been posted to another department. Huh? I was upset कि मेरे बॉस ने मुझे प्रमोट नहीं किया और मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया. कौन बता रहा है मुझे ये? कौन बता रहा है? Wrong data है. Wrong data है. Colleague बता रहा है मुझे, बॉस तो नहीं बता रहा ना. So it's wrong data. So number 1. Incorrect. Wrong data. Wrong data. You have to verify. Yes. किसने आपको बताया? कैसे बताया? कहाँ से पता चला? मैं अच्छा जाके पूछता हूँ बॉस से ऐसे हुआ भी है कि नहीं हुआ है. You know, before you decide to get upset and react on things, you must find out the truth. Right? And then we'll cover in the next section कि ये conflict पैदा फिर भी हो सकता है. Maybe it has happened like that. But how do you deal with it? That is the last area where we say, okay, now you've established conflict है, लेकिन इस conflict को कैसे handle करें?
right? That we will cover in the last section. So we covered three areas today on conflict, and the next one is our personality difference, which we'll cover next time, right? So Abhi, I want to, how are we doing on time? Yes, we should stop and give you a chance to ask questions. Basically, we will resume inshallah on Tuesday and cover your questions on this area before we go on to the emotional one. तो इस पे आपको पक्का करना है, जैसे पिछले वाले पे पक्का हो गए थे ना, तो इस वाले पे भी पक्का हो. You start writing your conflicts and see whether it's data conflict, whether it's you know, your values conflict, interest का conflict है, power conflict है, अपने रिश्तों को देखें and analyze them, right? Will you do that? Yes. Yeah. Yes. Can I ask question? Yeah, please do. हम लोग थोड़ा सा स्टक हो गए थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे सारे पार्टिसिपेंट्स भी कि वैल्यूज और इंटरेस्ट में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल वे से अगर आप हमें समझा सकें. लाइक वैल्यू वो है जो मैंने अपने अंदर एक बिल्ड किया है कि मुझे लाइक समझ ले मैंने कोई चैरिटी का काम करना है, तो मैं ये मेरी वैल्यू हो जाएगी. और मेरा इंटरेस्ट है जो मैं मुझे अगर मैं दुनिया में वही काम इंसाफ लाना है, सिस्टर साजिया, मुझे दुनिया में इंसाफ लाना है, ये आपकी वैल्यू है, राइट? यस, ओके. दैट इज योर वैल्यू सिस्टम. व्हाई वुड यू गो आउट एंड डू सोशल वर्क? सोशल वर्क तो आपका इंटरेस्ट है कि इस तरह से मैं करूंगी, लेकिन बिलीफ सिस्टम आपका है कि सबको हाँ, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, इसको भी खाना पीना मिलना चाहिए, इसको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसको भी राइट टू लाइफ है, बोलने की इसको भी राइट होना चाहिए, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहिए, राइट? सो वो आपका वैल्यू हो जाता है. तो जो भी मैं ठीक, जो भी मैं समझती मैं अच्छा काम करती हूँ और मैं इंटरेस्ट लेती हूँ कोई अच्छा काम करने में, उसके पीछे जो मेरा इंटेंशन कह सकते हैं इसको. You can say that behind all वो that मेरा is your value. Yes. I mean, why are we doing all these things that we are doing on Voice of the People? पीछे हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये तो इंटरेस्ट है कि भाई यू नो वी डू ऑल दिस वर्क एंड वी गेट इट टू एवरीबॉडी. पीछे तो बिलीफ सिस्टम है ना कि हमारी उम्मा है और हमने इनको यू नो वी हैव टू हेल्प देम, इट्स आवर ड्यूटी. ये हमारा बिलीफ सिस्टम है सबका कि हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, हमने कितना टाइम कहाँ पे खर्च किया, किस तरह से खर्च किया, हमें अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया, हमने शेयर किया या नहीं किया, कोई मुश्किल में था उसकी मुश्किल आसान की, उसको प्रॉब्लम उसके कॉन्फ्लिक्ट से उसको दूर किया या नहीं किया, उसको सिखाया. तो ये यू नो वी आर डूइंग द एक्शन, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट यू नो वी स्पेंड आवर टाइम दैट वे. बट पीछे तो बिलीफ सिस्टम तो यही है कि अल्लाह ताला को अकाउंट देना है जो भी हम करें, यू नो, एंड वी हैव टू डू इट टू हेल्प ह्यूमैनिटी. यस, सही. और किसी का कोई क्वेश्चन है? वरना मैं तो फिर और पूछती रहूंगी. आप प्लीज पूछ लें क्वेश्चन. मिस्टर फरहाना को हमारे ऑडियंस में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज. Yeah. So, Jazakallah khairan, Sister Paida, you know, very, very, you know, useful, you know, and subhanAllah, we are seeing conflicts, you know, in a much more clarity. I think that's kind of what, you know, we're getting out of, you know, this session. वरना बस conflict है, पता है, वो भी emotion से पता है कि, you know, you're not feeling good inside. बस उतना ही था. So, वहाँ से हम चले कि हमें ये conflict, you know, कंफर्म हो गया कि है और किस लेवल पे है, वो समझ में आ गई. और अब ये सेशन में यू नो ये नजर आ रहा है कि ये किस वजह से हो रही है. सो आई थिंक यू नो वी आर शेडिंग crystal clarity on you know on the conflict. So you know yeah, please aap log you know go ahead and raise your hands if you have any questions, but you know I do also have some questions, but please aap log guests, so you have the first right to ask questions, so please raise your hands. So you know regarding the in the meantime when you're waiting for us to you know think about it and raise the you know let me ask one question, that is, so जब हम value की बात करते हैं तो how much does a person think about his own value system, and how much
do we think about the value system about how others should be? Is that an issue? Yeah, that is, you know, that would be, we would, if you say there is a difference in values between you and me, to that degree, we are affected in our relationship, right? So it is very important to know the value system. I need to know your value system. You need to know my value system. तभी हम जुड़े हैं इकट्ठे, because the values are similar, right? So it's very important to know the differences and to look at your relationships and say कि उनका value क्या है और मेरा value system क्या है. Right. But my question was like, see, I know my value system, but are we good about knowing our own value system? Or are we more focused on the others should have this value system? Is that an issue? हम दूसरे इस तरीके से behave करें, दूसरे का belief system ये होना चाहिए. Are we more into that rather than knowing what our value system is? हमारी self awareness कितनी है? हमारे खुद की value system की versus how the society must behave की value system. That was the question. Right, I get it. Yeah, I think that's, again, you see, it really depends on the personality. You'll find some people who look at their own value system and reflect on it, whereas some people are just so focused on कि दूसरे को सही करना है, जो मेरा value system है उसको भी वही होना चाहिए. So it's again comes down to the fourth one, which is the personality difference, which we will cover it there. Okay. Yeah. Inshallah. Perfect. Inshallah. Inshallah. Yes. Anyone else? I don't have any raised hands. Yeah, we have question from This Nudrat ने raise किया है. शाहजी आप ले उसके बाद आप पूछ लेंगे. Yeah. जी. Nudrat, go ahead. अस्सलाम वालेकुम. मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अब मुसलमान हैं और सर साहिल हमेशा मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो अगर जब मैं देखूं मुस्लिम आइडेंटिटी मुझे कभी भी एक नहीं मिलती. एक कंट्री में लोग एक तरह के काम करते हैं, दूसरी कंट्री में. तो हम मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो क्या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ गुजारी थी, हम वहां से अपने बिलीफ्स लेंगे या फिर हम कैसे उसको सेम कैसे बनाएंगे अक्रॉस द वर्ल्ड? I think your question, basis, comes back down to the personality area. You know, you can't make somebody jump to the top levels of understanding the Quran and Hadith. You know, everybody's on a unique journey and they will rise step by step. They won't take a big leap. So personality को समझना बहुत ज़रूरी है, उनको उनकी journey में मदद करें so they can rise. That's our duty, and not to make us all the same. We are not supposed to be all the same. Right. So I hope it helps. I have a question. Yeah. मैंने 10 minutes थोड़ा लेट स्टार्ट किया ना, तो मुझे पावर का बहुत अच्छा समझ आया, डेटा का बहुत अच्छा आया. तो जो मैंने वैल्यूज और इंटरेस्ट का जो मुझे अब तक समझ आया, वैल्यूज जैसे हमें पता है हमारे बिलीव्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि क़यामत है, कुरान हमने पढ़ना है, हमें इस्लाम के बारे में पता है. लेकिन अब इंटरेस्ट ये होगा कि हमने उन बिलीव्स को कैसे पूरा करना है. जैसे हमें पता है कि अब ये चीज हमारे इंटरेस्ट में आएगी ना, दैट वी रीड कुरान डेली, वी ऑफर प्रेयर 5 times a day. These are interest. Yeah, they are the way you manifest your beliefs. यानी जिस तरीके से आप अपने beliefs को life में लाते हैं practically, वो आपका interest बन जाता है फिर. Interest बन जाता है. Okay, means I understand right. Alhamdulillah. Yeah, thank you so much. And और किसी का question था, brother अयूब थे? Yeah, Abdullah, your question. You can unmute yourself. Abdullah Tayyab. जी सबाहत, आप पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सबाहत. वालेकुम अस्सलाम. जी मुझे पूछना था सिस्टर फरीदा से, मेरा जो फर्स्ट कोर्स है वो नो योरसेल्फ वाला मैंने सबमिशन करा दी है. वो मतलब मुझे 1-2 दिन हो गए हैं. आई थिंक मैंने फ्राइडे नाइट को करवाया था. उसका मुझे फीडबैक नहीं आया कि मुझे फिर नेक्स्ट में लेवल पे जाऊं. वो कब होगा?
I'm just trying to get my battery and need your help there. So, किसने पूछा सवाल ये? Let me, can I have a सबाहत name? सबाहत, सबाहत सबाहत, आपने एक क्विज किया है? नहीं, मैंने सारे 2 क्विज और असाइनमेंट भी सबमिट करवा दिए। मैंने उसका स्क्रीनशॉट और सिस्टर शाजिया को भेज दिया था। Sister Shazia, I haven't received it. Assignment, she has submitted her assignment. Saying she sent a screenshot. I need to see the screenshot. मुझे भेजिएगा, I'll inshallah prioritize it. Okay, that's fine. जज़ाकल्लाह। Sabahat, you can unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कौन करता है, हमें इनकलकेट कौन कर रहा है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड। जैसे आपने एग्जांपल दी बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर्स या सिबलिंग्स जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है बिकॉज ऑफ मे बी जेंडर बेस्ड एक डिफरेंस आ जाता है कि थोड़ा सा लड़की को कहा जाता है कि वो ज़्यादा टाइडी अप रखे, ऑर्गेनाइज्ड है, और लड़के पे इतना फोर्सफुली नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता। तो who is in wrong, parents और यहाँ पे एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता कि मर्द को आगे जाके ये काम ही नहीं करने। सो वेयर इज द एरर? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वही जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े होके हस्बैंड फादर इस रोल में जब आते हैं तो फिर वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है कुछ डिफरेंट, मतलब एज अ फादर एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो जाती है। तो अगर तब आके वैल्यू और बिलीफ में और इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हाउ हाउ दे आर गोना डील विद इट, या फिर आप उसको छोड़ दें कि हमारे इनको इस तरह रेस किया गया है so we don't expect them to do certain things, to understand certain things, या फिर आप try to figure out कि how we communicate, how we overcome or try to manage or deal the conflict. So मेरा I think complicated सा हो गया है because I have confusion It's a in my very mind. good question. It's a very good question. And I think Thank you. इसमें रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी ना। आपको तो खुल गया आपका दिमाग इस तरफ, right? You're beginning to think about it. And, you know, once you start thinking about it, you can bring the change. You can address the issues. You know, जब आप know yourself का कोर्स करते हैं, आपने शुरू किया हुआ है ये know yourself का कोर्स? Have you started it? Have you started it? Are you with me? Hello? Can you hear me? आवाज आ रही है? हाँ, Yes, मैं yes. पूछती हूँ, आपने कोर्स शुरू किया है, कंट्रोल का कोर्स, नो योरसेल्फ I have पार्ट? started today. मैंने submit I have enrolled myself. So Yeah, you need to I speed am up looking on forward that. to it. हाँ, आपने कंट्रोल का शुरू किया है and you haven't First started one. part 2? No, first one जो था know yourself वाला आज ही मैंने enroll किया उससे। Okay, good. तो वो जर्नी आप लेंगी ना, वो जर्नी आप उसको टॉप प्रायोरिटी दें, क्योंकि उससे आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगी। When you become in your true self, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। You know, it's not hard to do. It's not hard at all. It's only when you operate with your emotions or with your thought patterns जो पुराने बने हुए हैं, जो आपने inherit किए हैं किसी और से, आप उन पे जब चलते हैं तो values आपके out हो जाते हैं। जब आप अल्लाह ताला से connect हो जाती हैं, and the Know Yourself Part 2 does that for you, you will be able to see the truth, क्योंकि आपकी फितरा में अल्लाह ताला ने ये डाला हुआ है। So you don't need to worry about it कि इतनी ये स्टडी वो आपको खुद ही पता होगा सही है या गलत है, and you will start implementing little things in your house, in your family to bring about the purity जो अल्लाह ताला प्योर बनाया है बच्चे को, आपको, मुझे,
we start acting without thinking just about ourselves. We are thinking about what is right. We have to give हिसाब to Allah Ta'ala, क्या चीज हम सही कर सकते हैं. So वो automatically आप उस journey पे, अपने spiritual journey पे आप शुरू हो जाती हैं, and you get to go on a journey of rising spirituality. और जब आप बढ़ती हैं तो आपकी family भी बढ़ती है आगे आगे. You know, automatically आपको बोलना भी नहीं पड़ता है, because your energy waves and everything changes just because you have changed. Does that make sense? Jazakallah, that's mashallah. I can feel my heart. The motivation and the emotion I am feeling right now, it's Alhamdulillah, I am so grateful that I asked this question, because sometimes we just keep ourselves, maybe it's not that important, maybe just let it be there, it's not so important question, but I think हर कोई अपनी एक जर्नी से गुजरा होता है और उसको नहीं पता था किस डायरेक्शन से और किस से पूछा जाए. So sometimes we get the wrong person in front of us. So Jazakallah, Allah Ta'ala आपको बहुत अच्छे दे. Jazakallah for answering. I just want everyone to get through the courses. You know yourself part 1, part 2 आपकी इंशाल्लाह life को बहुत stable करेगा. You know, you just have to go through it. And और इसी नियत से करें कि मुझे अपने को बेहतर इंसान बनाना है. इस नियत से नहीं करेंगे कोर्स खत्म करना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा इंशाल्लाह. एंड लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है. You know, Sister Shazia is here, Sister Aisha is here, they all, Sister Rat's here, we'll all help. You know, anything you get stuck on, we are here to support you. Yeah. Any other question? Abdullah Tayyib. जी. Ji, Brother Abdullah, you can ask your question. Assalamu alaikum. I think Abdullah Tayyib. इनका माइक तो अनम्यूट है, लेकिन ये बात नहीं कर रहे. हम किसी और से क्वेश्चन ले लें. बिलाल है. लिंक मैंने दिया हुआ है. आतिफ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. आई गेव द सर्वे लिंक, प्लीज चैट में डालें. Right? Have you got it? I'm sending. Yeah. Okay. Any questions, or are we done? I think. Yeah, Bilal, if you want. Bilal has a question. जी बिलाल. मैं कह रहा था, मैंने असाइनमेंट जब भी आपने दिए थे ना टिक करने के लिए, वो मैंने नहीं किया. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. It doesn't matter. वो ये तो हमने ऐसे जूम के लिए किया है. वो क्वेश्चंस कोर्स में भी होंगे. आई डोंट नो, वो इंग्लिश में आपको शायद प्रॉब्लम हो. वो भी हो, क्या नाम है वो जो गूगल ट्रांसलेट हो सकता है तो करें. गूगल ट्रांसलेट से हो सकता है तो प्लीज करें. यहाँ पे नहीं हो सकता ना. बाकी क्या नाम है, यहाँ पे काम कैसे करेगा गूगल ट्रांसलेट? काम ही नहीं कर रहा यहाँ पे. आतिफ से बात करें आप. आतिफ विल हेल्प यू. जी ठीक है मैम. एक बात और, क्या नाम है वो वाला जो पहले वाला कोर्स था हमारा कंट्रोल वाला, वो तो हो गया. उसके बाद क्या नाम है, कोई सा मिलेगा जो केएनजी शाजिया केएनजी शायद. हाँ, मेरे पास बात करता हूँ. वो क्या नाम है जी, तो उसका वो शेयर करवा दीजिएगा आप लिंक. हाँ मैं फिर वहाँ पे बताएंगे. सिस्टर आयशा बताएंगी, आते बताएंगे. पार्ट 2 पे ऑर्डर डालें अगर कंटिन्यू करना है आपको. स्कॉलरशिप पे हैं आप? जी भाई, वो पहले वाले जो है कंट्रोल वाला, वो 80% हुआ है. अभी उसका सवाल जवाब का सवाल जवाब भी कर लो ना. क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सवाल वो क्यों छोड़ी हुई है? छुट्टी ले लिए उससे? समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए क्या लिखूं. वो बाकी समझ गए और ये नहीं समझ गए, ये तो बहाना हो गया. बस इसमें थोड़ा लिखना था. बिलाल भाग गए लिखने से. हाँ, यही बात थी. बाकी वो में टिक टिक करना था, वो तो आसान था. ठीक है, मैं लिखो.
लिखने से भी बहुत कुछ सीखता है इंसान, ज्यादा सीखता है। कोई जी बात भाई नहीं होगी उल्टी पुल्टी इंग्लिश है, नेवर माइंड, जस्ट गिव मी योर आंसर, आई कैन मेक इट आउट। मैं जब लिख रहा था मैं सोचा था क्या लिखूं यहाँ पे, समझ में नहीं आया था कुछ। ताजिया से या सिस्टर आयशा से पूछेगा आप, ठीक है? जी ठीक। ठीक है। जी Okay, Abdullah, do you Thank have a question? Your hand is raised for a long time, but you're not responding. Yeah, he's muted. You can mute करें, Sis you. Shazi. Try again. I did. Yeah, Okay. Okay. Say. Okay. but Okay. he was unmuted. अच्छा. But Yeah. Play. बस unmuted. ठीक है. Okay. No worry. Yeah. yeah, Yeah. Sis Faida, a couple more questions. You know, Sis Shazi, आपको you had some questions as well. yes. I have this question from both groups. People are asking, why are you giving us these courses for free? So I thought Ma'am Frida can better answer this question. Go ahead. Sometimes because they think like it's so strange. People don't do in things like that in this time. I think So how? आप ये भी कह रहे थे ना कि फिर आप जल्दी भी कराते हो जल्दी का प्रेशर डाल। Gee. Yeah. I know the answer. I know हाँ, the अच्छा। answer. तो देखिए, But I want, आपको yeah. पैसे देने हैं जब आप अपनी मर्जी से काम करेंगे और 1 साल लगा लेंगे कंट्रोल कोर्स करने में, तो ठीक है, आप पैसे भी दे दें और फिर अपने टाइम से करें, आई डोंट केयर, क्योंकि आप ही को परवाह नहीं है। लेकिन जब आपको अपनी परवाह है और अपने बच्चों की परवाह है और सोसाइटी की परवाह है, तो व्हाई शुडंट वी हेल्प यू? तो फिर तो आपको टाइम पे काम करना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी स्पिरिचुअलिटी है कि आप अपने खुद को कितना आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है आपका घर और आपके बच्चों पे डिपेंड करता है आगे फ्यूचर जनरेशन। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। आप जो करेंगे हम सबको उसका भला मिलेगा। आप आगे कोशिश करेंगे, सबको भला मिलेगा उसका। एक बंदे की सोच आप देखें, आप एक कमरे में जाते हैं, एक बंदा गुस्से में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कहता, आप अंदर जाते हैं, आपको इफेक्ट नहीं होता उस बंदे के गुस्से से? वो कुछ भी नहीं कह रहा, बैठा हुआ है, एनर्जी वेव सब कुछ फैल रही है, इट अफेक्ट्स एवरीबॉडी। तो आप जब राइज करती हैं, या एज अ फादर somebody rises up the consciousness level, and they become a better person, तो उनके वो कुछ बोले भी नहीं, उनकी एनर्जी वेव्स चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से उनका घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बच्चे रिलैक्स हो गए हैं, बच्चे कैन बी डूइंग मोर बेटर। सो इट्स अ थिंग दैट वी नीड टू डू टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी। इट्स नॉट अबाउट मनी। मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि मैंने क्या किया। मनी इधर उधर से आएगी, थोड़े बिल पे हो जाएंगे, वो भी रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है, मिले ना मिले वो अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है। बेसिकली हमारा काम है हम इस लाइफ में मैक्सिमम करें जितना हो सकता है, एंड इंशाल्लाह वील डू दैट। डज इट आंसर योर क्वेश्चन एंड जो आपसे पूछे गए सिस्टर शाजिया? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाह रही थी कि आप खुद बताएं, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं लोग हाँ, और हमको बता रहे हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन ये क्वेश्चन आ रहा है, लोग यकीन नहीं कर रहे ना कि इस तरह से होता है। स्पेशली जब हम उनसे साइन अप के लिए उनको हेल्प कर रहे होते हैं और वो जो परचेज का बटन क्लिक करना होता है ना, तो वहां पे आके सब तो बहुत परेशान होते हैं कि ये परचेज लिखा हुआ है, आप तो कहते फ्री कोर्सेज है। तो मैं ये कह रही थी क्योंकि अभी यहाँ पे माशाल्लाह हमारे साथ 30 प्लस लोग हैं और सबने कोर्स, सब मोस्ट ऑफ देम आर ऑन कोर्स, लेकिन कोई भी अगर किसी ने भी पे किया है तो भी हमें बता सकते हैं। अब आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट लोगों को क्योंकि ऐसा इसको अल्लाह पे ताला है ना, अल्लाह आपने ताला ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं। जी not about money, जी भाई। जी मैम प्रीता। Nobody here is for money. या Nobody's here about money. We know कि अल्लाह ताला ने फिक्स किया हुआ है, so don't please, शक शुबा नहीं करें इन चीजों पे। Let's play the real game in life
of doing things that are right and being accountable अपने actions और thoughts के लिए. क्यों आप लोगों को बहुत बुरा सलूक हुआ होगा तो ये सोचते हैं कि सभी लोग ऐसे बहुत बुरा कोई कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में. हाँ हाँ लेकिन ये अल्लाह ताला जो है ना वो लोगों को एक जैसे लाइक माइंडेड लोगों को मिला देते हैं, तो आप ट्रस्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह 33 इंशाल्लाह. और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. और ये भी एक चीज मैम फरीदा ने भी मेंशन किया है कि हमें भी थोड़ा सा ये लालच है कि जब आप लोग करेंगे, सोसाइटी बेटर होगी, तो फिर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए भी फायदा है. तो सिर्फ अपना ना सोचें, बल्कि बाकी अपने आसपास का, अपने जिनके रिलेटिव्स हैं उनका, और पूरी सोसाइटी का हमने सोचना है एज ए मुस्लिम इंशाल्लाह. एक और रिक्वेस्ट है कि मैंने लिंक शेयर कर दिया है सर्वे का. प्लीज आज हमें अपना जो है ना फीडबैक देके जाइएगा. कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है. ये सर्वे का जो लिंक, सर्वे का जो फॉर्म है ना, इसको प्लीज अभी आप फिल कर दें तो रियली अप्रिशिएट इट. और मेरा ख्याल है अभी फिर क्वेश्चन है, ब्रदर साद का क्वेश्चन है आपसे. क्वेश्चन जी ब्रदर साद. अस्सलाम वालेकुम. ब्रदर साद अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बेसिकली मैं आपने जो सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले, ये बेसिकली पाकिस्तानी लोगों की तरफ से आया होगा आपका सवाल. तो इसका जवाब आप सिंपल उन्हें दें. सॉरी मैम, मैं आपको मतलब अभी पाकिस्तानी माइंडसेट का मुझे थोड़ा सा आइडिया है. उनको आप बोलें, जो भी आपसे बोले फ्री के बोले, नहीं आप चाहें तो आप पे कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं, हम पेमेंट भी कलेक्ट कर लेते हैं. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो ये सवाल नहीं करेंगे, उनको समझ आ जाएगा. उनको रियलाइज कराना पड़ता है कि ये चीज आपको जो है ना फ्री में किसी वजह से मिली. आप बोल दे ठीक है, आप पेमेंट दे दें, पेमेंट भी कलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर वो सवाल नहीं करेंगे. ये थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी होती है कि आप कभी बोले नहीं नहीं फ्री है आपके अच्छे के लिए और आपके भले के लिए, वो नहीं मानते. आप उनसे बोला "आप मुझे पेमेंट दें", फिर वो सही मान लेंगे आराम से, फिर आपकी बात से एग्री करेंगे वो. thank you brother Saad, thank you for explaining it. थैंक यू. Thank you जी. Sister Fana, you had some questions? अस्सलाम वालेकुम मैम. हाँ जी बोलें जी. अब्दुल्ला. आई एम सॉरी, वो आई वाज़न्ट एबल टू अनम्यूट द माइक्रोफोन. अच्छा मैम, आपसे ये पूछना है वैल्यूज़ के बारे में कि वैल्यूज़ की भी आगे से टाइप्स हैं, राइट? आई मीन इस लिहाज से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ फैमिली वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, और यू नो मुख्तलिफ तरह की आई मीन उसको हम डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन जो हमें प्रॉब्लम नज़र आता है अपनी सोसाइटी में वो ये है कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जिसको हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए, एक्चुअली वो जो है वो काफ़ी एक किस्म का बाकी जो वैल्यूज़ है, मसलन जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो उनको ओवरकम कर जाती हैं. तो इस माइंडसेट को किस तरह से जो है वो चेंज किया जाए कि सबसे प्रायोरिटी हमारी जो है वो आई मीन इस्लामिक वैल्यूज़ को दी जाए, ना कि जो फैमिली वैल्यूज़ हैं या फिर जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं. I think again I would say that you do the course. You started the course on control, haven't you? Yes? Yes, I have started, yes. So if you go on to know yourself part 2, तो ये चीज sort out होती है. ये जो है ना priorities, अच्छा ठीक है. you start finding out why are you running after these other things. So that course will open the door on your reasoning, and you will find out whether you're your true self or your false self when you're doing those. वो identify करना बहुत ज़रूरी है to move out of that valence or that personality that you make up do things. So it will address it, inshallah. Please give it priority. I'll stress, please give finishing part 2 your top priority. ठीक है ठीक है. अच्छा मैम, आपने ये अभी लेक्चर के दौरान ये एक बात ये भी कही है कि एक्शंस और बिहेवियर इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट किया है. तो मैं तो एक्चुअली ये समझ रहा था कि जो हम बिहेव कर रहे हैं वही हमारे एक्शंस हैं. व्हाट डू यू थिंक? No, I'm saying that what your character. When I say use the word behavior, it's like saying your character. Okay, ठीक है. और किस कैरेक्टर के?
किस कैरेक्टरिस्टिक में है, या कैरेक्टर आपका क्या है, वो किस रोल में है, क्या व्यूज हैं, फिर आप एक्शन उसी से लेते हैं आगे। वो फिर आप बिहेव भी कह सकते हैं, यू आर बिहेविंग लाइक दैट। यस। और मैम आप ये डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे एटीट्यूड और बिहेवियर में? आई मीन एटीट्यूड को ज़रा आप डिफाइन करेंगे थोड़ा सा? So attitude is what you actually are thinking, and way of thinking towards something. What is your attitude towards that thing? You know, and it can also change over time. So behavior जो manifest कर रहा है आपके attitude की वजह से आप वो चीजें कर रहे हैं फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you. Yeah. Okay. So, Sister Faida, just one more question regarding the data, the data collection, Marshall, we emphasize the importance of correct data collection. So, so do we really need any skills for proper data collection? Is it a matter of practice and being conscious? And how about the misinterpreted, data? How much does bias play a role? So basically, at the behind it all is आप conflict को खत्म करना चाह रहे हैं, right? So looking at the data with that intention कि मुझे सही data मिल जाए is in itself resolves the conflict to a large extent. लेकिन if you're in there with one of those ideas कि I have to win and I have to make you wrong, तो वो फिर you're playing that game of win-win वाला हो गया बात, फिर तो conflict होएगा. That's just it's not going to resolve in the best possible way. And the whole idea of the courses is that you come to be a very creative problem solver, so that you care about the other person fully and you care about yourself. So with that viewpoint, data to बहुत है. It's the whole internet is full of data, and you don't know what is true, what is false. But it's very easy to determine what is right if you are in connection with your fitra and your connection with Allah Ta'ala. You yourself know, okay, this seems right to me. Perfect. Yeah. Jazakallah khairan. I think that would be the end of it. I think enough for today. So for the next session, you have to know what we did in the previous session, and we have to know what we did in this session, right? So the next session Tuesday ka hai. We have on the same new session, we have 2, so that wo bilkul pakka baith jaye. So I'll be asking more difficult questions, and you can also attempt them, but please apply it. जिन लोगों ने रिलेशनशिप पे नहीं किया घर में, वो इस हफ्ते में करें, अपनी रिलेशनशिप्स को असेस करें, देखें कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं आप तरफ, ट्राई एंड गेट दैट एप्लीकेशन गोइंग, एंड देन फाइंड आउट कि किस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके फैमिली में हैं, फ्रेंड्स हैं, जॉब पे हैं. प्लीज look at that and reflect that and share your viewpoints next time you come here, so that we can also learn from you and you can learn from me and learn from each other. That would be the whole idea, कि वो पक्का आपके माइंड में बैठ जाए ना, कि आपकी सोच इस तरह की बन जाए कि अगर कोई अथॉरिटी से आपको थ्रेटन कर रहा है, तो आप एकदम से सोचिए ये क्यों मुझे फील हो रहा है, Why do I feel threatened? कौन सा मेरा राइट लिया जा रहा है? You need to analyze के why. Is it a power difference? Is it a value difference? Is it an interest difference? Is it a data difference? So, and what kind of data difference? So we want you कि आप इस पे पक्के हो जाएं कि your way of thinking changes whenever a conflict arises, so that you can keep your cool and not get react and respond, and एक चीज हाथ से निकल जाती है by reacting negatively towards a situation. प्यार मोहब्बत में everything can be creatively solved, So inshallah, that's what we are aiming for. So we look forward to seeing you it's only on Tuesday, so today is Sunday. So how many of you will finish a lesson, finish a course by Tuesday? कितना टाइम देंगे सिस्टर? चाहिए thumbs up. हाँ, I need some. Thumbs up. इतनी खुशी होती है ना
जब आप कोर्सेज खत्म करते हो अपनी सक्सेसेस देते हैं, there's nothing, you know, I learn from you and I'm so happy when you are winning. वही अजर है, वो भी अल्लाह ताला की नेमत है कि you know he showed you the way and you realize something. It makes us all happy that we are all doing it. Sister Shazia, all the team इतनी बैठी हुई है मेरी, and they all have pleasure in your learning something and you got your life sorted a little bit more. Does that make sense? Yeah. Only 5 people agreed. Or to what? Only 5 people agreed to only 5 people agreed to finish the 5 people. courses. नाम Yeah. बता दो. One. I will watch them. मैं अभी बताती हूँ. Sabahat Okay. and Shazia said. Again, can you give me thumbs up again? The people who सिस्टर मैं तो अगला करना चाहती हूँ लेकिन मेरा जब I think ये खत्म they changed their mind. But now Sister Shua changed their mind. Yeah, they've changed their mind. So Rubina. Atif said, Sabahat. No, शाजिया मैं waiting को dictionary से हटा दो. This word is not allowed in my training. Nobody waits for anybody. You just get on and do the courses. No waiting, schedule बनाओ, every day study. Does everybody agree to do that? Every day study. Shazia. Yes. Yep. Now thumbs up. Coming. सिस्टर शाजिया मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ और नेक्स्ट उसके बाद ही मिलेगा तो फिर मैं कर सकूंगी उसको. Sabahat, I'm going. I need. मुझे भेजिएगा, मैं इस मीटिंग फौरन बाद ये हैंडल कर. I don't want. Yes. Nobody wants that. जज़ाक. Okay, yeah, that's fine. अभी और कोई क्वेश्चन है? एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि नेक्स्ट टाइम प्लीज नेक्स्ट सेशन में अपनी वीडियोस ऑन रखिएगा. अभी बार बार मैम फरीदा को कहना पड़ता है मुझे, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप घर से प्रिपेयर नहीं होते हैं, पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो मुझे पता है आप इस वजह से अपनी वीडियोस ऑन नहीं करते. तो आप प्लीज नेक्स्ट सेशन में प्रिपेयर होके आइएगा कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी वीडियोस ऑन रखनी है. इंटरैक्टिव सेशन होगा हर दफा की तरह इंशाल्लाह. And yeah, Sister Farhana, over to you. Okay, inshallah. Jazakallah khairan for coming. Inshallah, we'll see you on Tuesday, same time, and hopefully, आप लोग make a note, as Mrs. Shazia said, list down all your relationships. आप उसको rate कर लें, relationship की strength को. उसके बाद conflict जो relationships में है उसमें आप आपकी levels लिख लें और उसके साथ साथ ये लिख लें कि क्यों आ रही है conflict. So inshallah, other than the personality disorders, which next time inshallah हम लोग उसको देखेंगे. So jazakallahu khair once again. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakallahu khairan Sister Farida for giving her time and her knowledge and sharing her wisdom here. And jazakallahu khairan all of you for attending and all the volunteers as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please remind them survey forms. Survey form. Survey form. Everybody. Survey form, Sister Farhana. So please go ahead and yeah, so some of them said they already filled it, but please go and fill the survey form. It's going to be the most important. It's like your feedback, and which will only help us. So that's the payment you're giving us, inshallah. You fill in the feedback form. Jazakallahu khairan.